Hello and welcome. You're watching Nationwide at 6. I am Osama Shab. Uttarkashi, it is reeling. Dharali village, once a serene Himalayan stop, it is now a graveyard of mud, boulders and shattered lives. There are many dead, over 100 missing, entire buildings swallowed whole. But amid the wreckage, the Indian Army, the NDRF, SDRF as well as the ITBP and others, they are fighting back, airlifting the stranded, digging for the trapped, braving rain, and that still threatens more destruction. And NDTV, they have been on ground. NDTV's reporters, they have been on ground, bringing you every heartbeat of this unfolding tragedy, every rescue, every cry for help, and every flicker of hope. There have been multiple images coming out of Uttarkashi, and some of the defining images. Let's take a look at those, starting with the first image. Aerial footage from the Gangnani Bridge site. It showcases the ongoing restoration efforts led by the BRO, that is the Border Roads Organization, as well as the SDRF. This initiative, it comes in response to the devastating floods that left hundreds stranded. The NDRF team, they have successfully evacuated hundreds from the Gangotri area. Moving on to the second defining image that we are showing you at this point of time. Harrowing scenes from Uttarkashi showcases the prompt efforts of authorities. They were trying to rescue a stranded ambulance. Look at those images. This highlights their dedication to relief operations. The third defining image comes from a drone visual of Uttarkashi. It reveals the devastating impact of the flash flood with widespread destruction, debris scattered throughout the area. The aerial footage, it shows debris-choked riverbanks and vast stretches of the town submerged under thick layers of mud up to 50 feet deep in some places. There are roads that are seen ripped apart. Houses, they are flattened beyond recognition. These visuals provide a bird's eye view of the entire disaster and the scale of that disaster. It highlights the challenging terrain and also the extent of this destruction. Moving on to our other defining image that we are showing you at this point of time. Remote sensing machines. These are the remote sensing machines that are being used by the rescue operation, the agencies there. They are playing a crucial role, and this particular machine is used by ISRO, the Indian Space Research Organization. It is used to assess the damage caused by the flash flood. In this particular case, in Uttarkashi's Dharali village, the high-resolution images reveal the extent of the destruction, including the widened stream channels, altered river morphology, and the damage to human lives and infrastructure. And the final image, this is the last defining image that we are getting you at this point of time. Uttarkashi's flood relief operations. These people are lining up to board helicopters which are airlifting stranded individuals to safer locations like Matli. The helicopters, it includes Chinook, Mi-17 choppers. They are playing a crucial role in evacuating the tourists and the locals who are trapped due to these flash floods and the landslides. In fact, the advanced equipment is also being airlifted to these affected areas in order to speed up the rescue operations. With roads blocked, hundreds potentially buried under the debris, authorities, they are working tirelessly on a war footing to rescue all of those who are stranded. In fact, a lot of reactions have been coming in. The Chief Minister of Uttarakhand, he in fact spoke to the media earlier. Listen in to what he had to say. धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे, सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग, सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून
अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। Well, the scale of the devastation, it is unimaginable. But the rescue operations are underway and it is taking place at a war footing. My colleague Ankit Tyagi, he has been tracking all the latest developments from the nearby villages. In fact, he spoke to some of the travelers who are from Uttar Pradesh. There are many from the local villages there, especially the Mukba village, who spoke to him earlier. Listen in to what they had to say. For a lot of people, it has been a walk of life and death. And I've just met these young men, all from UP, those who have walked all the way from Harsil. They are walking all the way. They started in the morning, and now they have reached after about almost 10 hours. They have reached here in Gangnani, where the bridge is being constructed. क्या नाम है भैया, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? सर हम हरसिल से आ रहे हैं। नाम क्या है आपका? रईस अहमद। रईस, कहाँ काम करते हो आप? सर हम हरसिल में काम करते थे। हर्षिल में मेन। जी। तो जब आपदा आई थी आप लोग वहीं पर थे? जी सर। हर्षिल में भी नुकसान हुआ है? हरसिल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये आप सब लड़के यूपी से ही हो? जी सर। आपके और भी कोई लड़के वगैरह वहाँ पर भी थे क्या? सर जो हमारे थे पहले थे वो पहले जा चुके थे आपदा से पहले ही। अभी फिलहाल हम इतने ही थे। मतलब आपके सब लड़के सेफ हैं? जी सर। यूपी में कहाँ से हो? बिजनौर से सर। आप सब बिजनौर से हो? सारे बिजनौर से हो? अच्छा, ये बताओ मुझे कि कितना समय लगा वहाँ से चल के आने में? सर लगभग हमको लग गया 5 से 6 घंटे लगे। अब सुबह कितने बजे चले थे? हम चले थे 7:30-8 बजे तक। 7:30-8 बजे? जी। और रास्ता कैसा है इसके? रास्ता सर बहुत टफ है, बहुत रिस्क है आने में सर। कहाँ सड़क टूटी हुई है हर जगह? पूरी सर, पूरी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रोड पूरी खत्म है। फिर आप लोग कैसे आए? साइड में से सर, नदी के किनारे किनारे साइड में छोटा सा लगभग 2 फीट का रास्ता था, उसी से हम आए हैं सर। सामान वामान तुम्हारा कहाँ है? सब खत्म हो गया सर, कुछ नहीं बचा सामान। तो इतने दिनों तो तुमने खाना पीना अपना कैसे? सर कुछ वहीं के गांव वालों ने हमको जो है थोड़ा खाना वाना सब दिया है। खाने में हमें प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन यह है कि हमें बचने लायक उन्होंने खाना खिलाया है। और अब क्या करोगे आप लोग, कहाँ जाओगे अभी? तो सर हम उत्तरकाशी जा रहे हैं, वहाँ से देखेंगे अब आगे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है। फोन वोन कुछ बचा तुम्हारा? फोन वोन बच गया सर। जी सर। अब सब लोग अब यहाँ से उत्तरकाशी जाओगे, वहाँ से यूपी जाने की कोशिश करोगे? जी सर। घर वापस जाना है? घर जाना है। वहाँ पर किसके साथ काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे? सर हम करते थे टूटू रावत का काम कर रहे थे वहाँ पर। अच्छा, इस होटल का काम? जी, रिसोर्ट बना रहे थे हम। अच्छा जी। तो मालिक से बात हो पाई रिसोर्ट वाले? रिसोर्ट वाले से भी, वो भी खुद परेशान है, वो भी उनका भी बहुत नुकसान हो गया। वो वहीं पर है अभी। अच्छा, तो पैसा वैसा दिया उन्होंने आने जाने के लिए? पैसा वैसा अभी तो पैसे वाली हालत ही नहीं थी हम लोगों के, पैसे के लिए रुके या वो करे, बस जान बचा के निकले वहाँ से। फौजियों ने हमें बोला यहाँ से खाली कर दो, बहुत खतरा है यहाँ। हरसिल में भी काफी तबाही हुई है सर, वहाँ पर तो आर्मी वाले भी बहुत लोग लापता हैं। भराली के बारे में पता? तो सर कुछ पता ही नहीं कितने लोग गए हैं वहाँ पर, कितने लोग चले गए दुनिया से, पता ही नहीं है। पूरे घर बर्बाद हो गए लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। These young boys, a group of these 7 men, all from Bijnor in Uttar Pradesh, were working in Harsil, have experienced the devastation and are now trying to make their way back to Uttarkashi at this moment. You will hear many tales of this nature coming out. Once, of course, there is some access. I can in fact see more people coming in from there. So this is after so many days that people have started to gather courage and travel this treacherous trek to make their way back to Uttarkashi after walking many hours in absolute difficult circumstances and an unforgiving terrain. क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र सिंह राणा है। राणा साहब, कहाँ के रहने वाले हो? मैं पंजाला से, ग्राम सभा पंजाला और पोस्ट ऑफिस बॉन। अगर जो हमारे जो लोग हैं जिनको दिल्ली में पता नहीं है कि ये जगह कहाँ पर है, तो आप बताओगे ये भराली के आगे है, कहाँ है ये? वो ये अभी तो सर ये आपका जो है यहाँ पीछे 2 किलोमीटर पीछे गंगनानी बोलते हैं, गरम कुंड, वो वहाँ पे हम अभी समय। अच्छा, और यहाँ से आप, ये जगह तो समझ में आया। आपका जो गांव है, कहाँ से आप चल के कहाँ से आ रहे हो? मैं तो अभी यहीं से मुखबा से आ रहा हूँ,
धराली के जस्ट सामने है। जिस जहाँ से वो वीडियो लिया गया था वीडियो लिया गया। पूरा बाढ़ का। हाँ। जी हाँ जी हाँ, वहीं से आ रहा हूँ। वो कल वहाँ से मैं लगभग सुबह 9 बजे चला था और 10 बजे आपके जो है हरसिल में पहुँचा। तो वहाँ पे जो है सबने कहा कि यहाँ से जो है हेली व्यवस्था है। तो हेली व्यवस्था में क्या देखा गया कि वहाँ पे कि अदर स्टेट के थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो वहाँ पे यही बोला कि सबसे पहले इनको भेजा जाए जो दूर दूर के हैं। तो हमको पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं? हमने कहा सर हम तो उत्तरकाशी जाएंगे। बोला उत्तरकाशी वाले को भी भेजेंगे 2-2 3-3 करके, पर पहले बाहर वालों को भेजना है। तो वहाँ से जो है लगभग 5-6 उड़ान जो है दिल्ली के लिए हुई। दिल्ली भी भेज दिए, वो गुजरात भी भेज दिए और देहरादून भी भेज ही रहे हैं लगातार। फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, हमने कहा फिर सुबह हम जो है वैसे भी हम लोकल आदमी हैं, लोकल लोगों को नहीं भेजा है। नहीं हम लोग हम चलते रहते हैं यार हमारा। लोकल लोगों को वहाँ से नहीं भेज रहे हैं अभी हेलीकॉप्टर से, कुछ को भेज रहे हैं, कुछ को भेज रहे हैं जिसकी वालों को भेज रहे हाँ जिसकी इमरजेंसी है, कोई बीमार है अचानक कुछ है तो उनको भेज रहे हैं। बाकी अदरवाइज बोला कि कोई बात नहीं भेजेंगे सबको। फिर हमें फिर एक तो दूर संचार सेवा जो है ठप है, घर में भी परेशान थे लोग, सोच रहे क्या पता हो सके इनका फ़ोन नहीं लग रहा कुछ नहीं, तो क्या पता ये भी कहीं उसके दैवीय आपदा के शिकार तो नहीं हो गए। फिर से बताना चाहता हूँ, आपने बताया मुखुआ विलेज, हाँ, मुखुआ गांव वो है जो बिल्कुल धराली के दूसरी तरफ है, ऑपोजिट है, और वहीं से वो वीडियो जो आपने देखे आपदा के, वो वहीं से वीडियो बनाए गए थे। जी 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 जी। कितना क्योंकि समय लगा आपको वहाँ से आने में? वहाँ से आने में तो सर यदि मैं आज सुबह भी चलता तो लगभग यहीं पहुँचता, क्योंकि वहाँ से मैं रात को मैंने झाला में होल्ड किया। फिर वहाँ से फिर सुबह हम उधर जाने लगे तो 2-4 और मिल गए। उन्होंने कहा यार उत्तरकाशी वालों को टाइम लगेगा, 3-4 बजे तक नंबर आएगा, ऐसे करते हम चलते रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है 15-20 आदमियों का कितने घंटे आप लोग चले? अभी तो लगभग ये गालो सर कि वहाँ पे 9 बजे चले हम झाला से तो अभी 2-2.5 घंटे करीबन इधर सोनगाड़ है, वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक दिया, बोला कि रास्ता ठीक नहीं है, आप लोग जान जोखिम में डाल के मत जाओ। इसलिए हम जो चलते, हमने फिर बोला ठीक है आगे से परमिशन आने दो, क्या कैसा है हालत। फिर जब इधर से मीडिया वाले में गए आपके, तो उन्होंने कहा नहीं रास्ता ठीक है। हमने कहा जब ये नीचे के लोग आ सकते हैं तो हम तो इधर के लोग तो चले जाएंगे आराम से। फिर बोलो वहाँ पे व्यवस्था है फिर कि वहाँ पे जो SDR पर लगे हुए हैं ये लोग जो है पार करवा रहे हैं, तो इसलिए हम आए। अच्छा, क्या हालात हैं वहाँ पर बराली के और हरसिल और उधर के, क्या हालात हैं इस समय? हालात तो सर अभी क्या बताएं, वहाँ पे वहीं पे जो है आपके हरसिल में जो है ITBP कैंप भी था सामने पे जस्ट ही, वहाँ पे भी वो काफ़ी तबाही मची है। धराली पूरा खत्म हो गया है? धराली तो पूरा ही खत्म हो गया, तो मैं हो सके तो मैं आपको पोस्ट दिखा सकता हूँ, मेरे पास फोटो भी है उसके। दिखाओ आपके फ़ोन में है? जी हाँ, ये आपने बनाया है? जी, ये तो मेरा ये है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये है धराली का। ये धराली पहले मार्केट था, ये इधर है, ये जो ऊपर से आया स्लाइडिंग, ये आपने मुखी से बनाया है? मुखवा से बनाया, जहाँ नीचे से फिर ये झील बना हुआ है जी, हरसिल से आगे जो हरसिल से रास्ता अगर आगे जाए तो ये झील है, ये झील बना हुआ है नीचे नदी में। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, इससे आगे और दिखाऊँ मैं, ये पूरा झील बना हुआ है। जी, ये झील बना हुआ है, ये सामने ये ITBP कैंप था इधर जो दिख रहा है, यहाँ पे भी पर रास्ता है जाने का, इधर रास्ता है, हरसिल से जा सकते हैं? जी हाँ, साइड से रास्ता है, सीधा आप मुखवा निकल सकते हैं। मुखवा निकल सकते हैं जी, और धराली जाने का रास्ता नहीं है? धराली जाने उधर जाने का रास्ता नहीं है? मुखवा से फिर नीचे पुल क्रॉस करके, पुराना पुल था वहाँ पे, वो अभी भी कायम है। अच्छा जी, धराली में कुछ लोगों से कुछ संपर्क हो पा रहा है? संपर्क सर अभी अब ये क्या बोलते हैं, टेलीफोन से यदि फोन और आ गए तो। ये कुछ आपके पास और ये है सर, ये था, ये वही धराली वाला ना, ये हरसिल का है सर। ये हरसिल का है? जी हाँ, ये हरसिल का ये मार्केट है जो दिख नहीं रहा है, ये हरसिल का मार्केट है। जी हाँ, ये नदी भी जो यहाँ पे झील बन गई ना, इधर से ऊपर से आया था पूरा, ये इसमें था ITBP का कैंप। यहाँ पूरा वहाँ सारे दबे हैं, गाड़ी उड़ी जो भी थी, गाड़ी वाड़ी। हाँ, जवान भी लगभग बता रहे हैं कि 10-11 जो है। अब आप कहाँ तक जाओगे पैदल? मैं अभी सर यहाँ से जहाँ तक गाड़ी मिलेगी वहीं से गाड़ी में बैठ के, जी उत्तरकाशी आगे रहता हूँ मैं, मातली से ऊपर। मैं भी ऐसे ही कुछ अपने काम धंधे के सिलसिले में गया था, इसलिए फिर। आपके जानने वाले से ऊपर सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित हैं सर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद सर। So you've seen how difficult it has been for people, and these are first-hand accounts of those who have seen the tragedy unfolding in Dharali. Well, the scale of devastation, it is quite unimaginable. And in fact, if you talk about this one particular picture from Gangnani, there used to be a bridge somewhere right here.
And this is quite significant. This is quite important because even a small bridge in a difficult terrain like this, it basically helps the people who are living in that particular area to get food, to travel to hospitals, etc. And it is the reason why it becomes quite important for the authorities to make sure that this bridge is reconstructed sooner than enough. In fact, there are multiple pictures, not just from this particular area, but from other areas as well. And my colleagues, they have been reporting from the other parts of Uttarkashi to get the complete picture as far as the rescue operation is concerned. Take a look at those reports as well. इस वक्त हम पैदल रूट पे जा रहे हैं, बेहद ख़तरनाक है और थोड़ा मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि संभल के चलना पड़ रहा है। ये थोड़ा रोड देख सकते हैं, पैदल है ये पूरा और काफ़ी डाउन स्ट्रीप है इलाका और यहाँ से थोड़ा सा पैदल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ 2-4 लोग स्थानीय लोग थे जो लेके हमारे साथ आ रहे हैं और ये पूरा रास्ता पैदल है। ये कुछ लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं और यहाँ से हमें पैदल होते हुए जाना है। ये अंदर जंगल का रास्ता होते हुए जाएंगे क्योंकि गंगनानी से पूरी सड़क बंद है और गंगनानी से हम यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पहाड़ नीचे और लगभग 3 किलोमीटर लंबा पहाड़ चढ़ना है हमें और एनडीटीवी की टीम लगातार उस रास्ते पे है और ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जहां पर वो लैंडस्लाइड पूरा हुआ था, तबाही हो चुकी है। आगे की ओर बढ़ेंगे और इसी तरीके से रास्ते में आगे चढ़ेंगे। अब ये पूरा रास्ता बेहद कठिन है, डीप स्टेप है, लंबा और पूरा यहाँ पे गीला है। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये रिंगाल है जो बांस की प्रजाति है और मेरे साथ कुछ और साथी लोग हैं और यहाँ पे जाना आसान नहीं है और आगे की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ जाना है। और ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से बैठते हुए पैदल, फिसलन बहुत है यहाँ पे, फिसलन बहुत है लेकिन फिर भी पूरा गीला रास्ता है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे जाएंगे, पूरा ये रिंगाल का जंगल है। आगे की ओर यहाँ से बढ़ रहे हैं हम। बेसिकली उस रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे हमें आगे की ओर बढ़ना है। आगे हमें धराली, हर्षिल, सूखी टॉप जाना है और जहाँ पर पूरी तरह से रास्ता बंद है। लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जाना है। ये रास्ता आप देख सकते हो किस तरीके से जंगल का रास्ता है, पूरी तरह से बंद है और इन्हीं पगडंडियों से होते हुए और इसी फिसलन भरी जगह से होते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। कोशिश करेंगे तस्वीर दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, बहुत ही ख़तरनाक टेरेन है, पैर रखने की जगह नहीं है। जहाँ आपका पहला स्टेप पड़ रहा है वहीं आपको दूसरा स्टेप भी रखना है और फिर उसके बाद ये रिंगाल कहते हैं इसे पकड़ते हुए नीचे जाना है। हम इस वक्त गंगनानी पहुंच चुके हैं और गंगनानी की अगर आपको तस्वीर हम दिखाएं तो आर्मी, बीआरओ और एसडीआरएफ के लोग, तमाम सारे लोग यहां पर जो है वो जुटे हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो इस गहरी जो खाई है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं दूसरी ओर जो सड़क आप देख रहे हैं वहां कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, वही हर्षिल की ओर रास्ता जाता है। और इस सड़क के बीच में जो ये आप देखिए कि ये जो नदी है, इसका ये जो पुल है, यही गंगोत्री का पुल है और गंगोत्री जाने वाले का ये पुल है और यही पुल बह गया था। तकरीबन 25 मीटर के आसपास का ये पुल है। तो ये पुल बह जाने के वजह से आप देखिए कि कोई धराली तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब इस पुल को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शुरू किया गया है। किनारे मत जाओ पवन, इधर। ये सारी जो सड़कें हैं ये आप देखिए बह चुकी हैं। हालांकि
ये सड़क बहुत बड़ी दुश्वारी नहीं है, क्योंकि इसको बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि ये पुल बनने में वक्त लग रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्रेन और 2 जो बुलडोज़र हैं, पोकलैंड हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो उस साइड में अभी आप देखिए कि लोग पहुँचे हुए हैं। तो अब जल्दी से ये जो बैली पुल है ये तैयार हो सकता है। आइए दिखाते हैं आपको कि जो बैली का पुल है ये किस तरीके से यहाँ पे तैयार हुआ है। ये देखिए, बैली का पुल तैयार करने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर चल रही है, और लग ये रहा था कि जैसा एनडीटीवी ने बताया था आपको कि 24 घंटे के भीतर ये बैली का पुल तैयार हो सकता है। तो आप देखिए कि इसका बेस जो है वो रखा जा रहा है, और जैसा बीआरओ के इंजीनियर बता रहे थे कि इसको खिसकाते हुए आगे लेकर जाया जाएगा। हड़बड़ी का माहौल है, तुरंत यहाँ पे सारे लोगों को हटाया जा रहा है कि उनके काम में कोई बाधा ना पड़े। हम भी ये चाहते हैं कि काम में बाधा ना पड़े। और यहाँ पर आप देखिए पीछे 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 पीछे, काम में बाधा मत पहुँचाओ, आओ पीछे आओ, आओ पीछे आओ। ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, युद्ध स्तर से काम चल रहा है। बीआरओ, उत्तराखंड पुलिस, आर्मी के लोग, सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी तरीके की कोशिश है कि उस सड़क तक इस बैली पुल को जो है वो जोड़ा जाए, ताकि ये जो सड़क है वो हरसिल घाटी तक जाती है। तो इस सड़क से अगर आप जाएंगे तो 30 किलोमीटर दूर हरसिल घाटी है, और ये भी बताया जा रहा है कि हरसिल घाटी से पहले एक नाग माता का मंदिर है, उसके आसपास में जो रोड है वो भी बह चुकी है। तो उसको भी बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने उधर फंसे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि अब बहुत तेज़ी के साथ में युद्ध स्तर पर ये काम शुरू हो चुका है। हमने आपको बताया था कि 24 घंटे के भीतर जो बैली का पुल है वो तैयार हो सकता है, एनडीटीवी ने बताया था। आप देखिए उस तरफ किस तरीके का जो बोल्डर है वो आया हुआ है, और गहरी खाई आप देखिए कितनी गहरी खाई है। इसी की वजह से एनडीआरएफ के लोगों ने करीब 4 से 5 बार रस्से लगाकर इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। अब एनडीआरएफ के जो दूसरे लोग हैं वो एक दूसरे रास्ते से, देखिए आप उस साइड में लोग दिख रहे हैं, ये वहाँ पीछे एक गांव है, उधर से गांव के लोग भी आए हुए हैं, और एक और रास्ता खोजा है एनडीआरएफ ने अस्थाई, उसके वजह से दूसरी तरफ जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। तो अब लग ये रहा है कि धराली की दूरी अब धीरे धीरे कम वक्त में पूरी की जाएगी। Well, it is day 3 of the rescue operations, and as the night falls on Uttarkashi, the search will go on. The families, they are waiting. Rescue teams, they are working tirelessly, and more importantly, hope endures. NDTV team will remain there, bringing you the latest until every story is told. Thanks for watching.